جو ہارٹی کلچر کا سیگمنٹ تھا اس حوالے سے نیب کی طرف سے جو کال اپ نوٹس موصول ہوا اس کا جواب جمع کرانے کے لیے آج ہم نیب کے اسلام آباد کے دفتر آئے تھے. اور اس کیس کی منفرد بات یہ ہے کہ جب یہ کال اپ نوٹس 12 تاریخ کو بھجوایا گیا تو یہ کہا گیا کہ ہم نے جولائی میں بھی ایک کال اپ نوٹس دیا تھا. تو ہم نے جو جواب جمع کرایا اس کے اندر ہم نے لکھا ہے کہ 9 جولائی 2021 کو کسی قسم کا کوئی کال اپ نوٹس موصول نہیں ہوا اور اس میں نیب کی بدنیتی شامل ہے. اگر ان کے پاس کسی قسم کی کوئی ریسیونگ ہے، جب بھی کوئی سرکاری محکمہ یا نیب جیسا ادارہ کسی کو کوئی نوٹس بھجواتا ہے تو اس کی ریسیونگ ضرور لیتا ہے. ہمیں کسی قسم کا نوٹس موصول نہیں ہوا. اگر ان کے پاس ریسیونگ ہے تو نیب کے ترجمان وہ ٹی وی اسکرین پر دکھا دیں کہ جی یہ ریسیونگ ہے جو 9 جولائی کو آپ کو نوٹس بھیجا گیا تھا. اس کیس کی ایک اور منفرد بات یہ ہے کہ یہ کیس 45 لاکھ کا ہے اور یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ جو کم مالیت کے کیسز ہیں وہ چیئرمین نیب کی منظوری کے بغیر نہیں بنائے جاتے. تو اس کو چیئرمین نیب کی خصوصی منظوری کے بعد یہ 45 لاکھ کا کیس بنایا گیا جو کہ نیب نیازی گٹھ جوڑ کی بدترین مثال ہے. یعنی 2018 اکتوبر میں آپ 7 ارب کا الزام لگاتے ہیں، گرفتار کرتے ہیں، صاف پانی میں بلا کے آشیانہ میں بٹھا لیتے ہیں اور اسی گرفتاری کے دوران آپ گرفتاری ڈالتے ہیں رمضان شوگر گندا نالا کیس میں. ایک شخص گرفتار ہے، اس کی دوبارہ گرفتاری ڈال دی کیونکہ عمران نیازی صاحب کو اس کی گرفتاری پسند ہے. اور یہ نیب کا کام ہے کہ عمران نیازی صاحب کے ہر حکم کو بجا لایا جائے. تب بھی بات نہ بنی تو وہ اس ملک کی اعلیٰ عدلیہ نے 14 فروری 2019 میں میاں شہباز شریف صاحب کو رہا کیا اور لاہور ہائی کورٹ کا وہ آرڈر پڑھ لیجئے آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم کا اور رمضان شوگر گندے نالے کیس کا، جس میں یہ لکھا گیا ہے کہ کسی قسم کی کرپشن ثابت نہیں ہو سکی. آپ کو یہ قابل قبول نہیں تھا اور شہزاد اکبر نے نیب کے ساتھ مل کے ایک نیا کیس بنایا. اس کیس میں 7 ارب کی غبن کا الزام تھا، 58 والیومز کا ریفرنس ہے، 110 گواہ ہیں. جب ہائی کورٹ میں میل کا معاملہ گیا دوبارہ 7 ماہ کے لیے شہباز شریف صاحب کو قید کیا. جب دوبارہ یہ معاملہ ہائی کورٹ میں گیا تو ہائی کورٹ میں نیب نے کہا کہ کرپشن کا تو الزام ہی نہیں ہے. او بھائی میرے، جب کرپشن کا الزام نہیں ہے تو 6 ماہ پہلے قید کیا، 7 ماہ دوبارہ قید کیا، تو الزام ہے کس چیز کا؟ اور اب 7 ارب سے بات 45 لاکھ دے پھل بوٹیاں تے آ گئی ہے. 45 لاکھ کے پھل بوٹوں کا جو معاملہ ہے یہ انتہائی مزے کا خیز ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ احتساب کے نام پہ اس ملک میں جو مذاق پچھلے 3 سال سے کیا جا رہا تھا وہ اس سے زیادہ مزے کا خیز نہ کیس بن سکتا ہے نہ تاریخ میں بنا ہے. ہم سنتے رہے کہ بھینس چوری کا مقدمہ سیاستدانوں پہ ہو جایا کرتا تھا. ہم سنتے رہے کہ چھوٹی موٹی چوریاں لوگوں پہ جھوٹے مقدمات بنا کر ڈالی جاتی تھی، وہ بھینس ہو یا گائے چوری ہو. ہمارے پہ یہ جو پھول بوٹوں کی چوری کا مقدمہ ڈالا گیا ہے اس میں میں چیلنج کرتا ہوں کوئی ایک دستاویز دکھا دیں جس میں یہ درج ہو کہ شہباز شریف صاحب کا اس پھول بوٹوں کے کانٹریکٹ سے کوئی دور دور تک تعلق ہے یا یہ کانٹریکٹ ایوارڈ کرنے میں ان کی کسی قسم کی کوئی ہدایت ہے. یہ آپ شو کر دیں. ستم ظریفی یہ ہے کہ وہ شخص جس نے کبھی تنخواہ نہیں لی، جس نے کبھی مرات نہیں لی، جو تمام سرکاری دورے گاڑی میں پیٹرول بھی اپنی جیب سے ڈلواتا رہا، جو بیرون ملک دورے کرتا رہا تو ٹکٹوں کے پیسے بھی اپنی جیب سے جمع کراتا رہا. تو یہ عمران نیازی صاحب اور نیب کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ 6 کروڑ روپے بنتے ہیں جو شہباز شریف صاحب نے بیرون ملک سفر کے لیے ٹکٹیں، گاڑیوں کے خرچے، تنخواہ نہ لینا، بیرون ملک سے آئے مختلف سربراہان حکومت کی جو خاطر تواضع ہوئی، اس حوالے سے جو خرچہ ہوا وہ 6 کروڑ روپیہ بنتا ہے جو اس شخص نے اپنی جیب سے ادا کیا.
और आप यहां पे 45 लाख का केस बनाए बैठे। मैं उस चिन्योट के खाम लोहे के मंसूबे का भी जिक्र करना चाहूंगा जो परवेज मुशर्रफ साहब के उस दौर के सेक्रेटरी ने अपने अमरीकी नजाद भाई को वो ठेका दिया था, बगैर किसी रूल्स के, बगैर किसी प्रोसीजर के। शहबाज शरीफ साहब ने वो चोरी पकड़ी, मामला हाई कोर्ट तक गया और हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत के हक में फैसला दिया और शहबाज शरीफ ने इस चिन्योट के खाम लोहे के मंसूबे में पहले फेज में $4 अरब की बचत की। $4 अरब। उस जमाने में वो 400 अरब रुपया बनता है और आने वाले वक्तों में पता नहीं कितना खाम लोहा निकलेगा और कितने अरबों की बचत होगी। ये बहुत बड़ा डाका डाला जा रहा था जहां पे वो कंपनी सारे पैसे हड़प करके पंजाब हुकूमत के अपने मुनाफों की मद में घर लेकर जा रहे थे। ऑरेंज लाइन पे बड़ी बातें होती हैं आज। ऑरेंज लाइन सीपैक का मंसूबा था, G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टिंग थी, और जब एक गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट करती है तो वहां पे टेंडर का कोई शर्त नहीं है, आपको टेंडरिंग नहीं करानी पड़ती। शहबाज शरीफ ने, चीन दोस्त मुल्क है, उसके बावजूद उसकी टेंडरिंग करवाई ताकि उसकी कीमत और लागत कम हो सके। दुनिया में मिसाल नहीं मिलती कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो और आप इसरार करें कि हमने टेंडरिंग करवानी है। जब फाइनल बिड आई उसमें $600 मिलियन की बचत की, $600 मिलियन की, तकरीबन 81 अरब रुपया ऑरेंज ट्रेन मंसूबे में बचाया। और ये वो बचत है जिसकी कोई उन पर सरकारी तौर पे या कानूनी तौर पे उन पर लाजिम नहीं था कि ये बचत करते। अपनी फराइज़ मनसबी से आगे बढ़कर अपने शऊरी फैसलों के तहत 1 खरब की बचत की है। ये छोटी छोटी मिसालें हैं कि जहां पे कौम का अरबों रुपया बचाया है। बिजली के मंसूबे देख लें, कई 100 अरब की बचत है। आप अपना रोजगार स्कीम देखें, ये दुनिया की वाहिद मिसाल है कि जापानी कंपनी सुजुकी से कॉन्ट्रैक्ट हुआ और उस कॉन्ट्रैक्ट के नतीजे में गाड़ियां ली गई जो लोगों को रोजगार के लिए दी गई। और एक दिन उन्होंने अखबार पढ़ी तो पता लगा कि जापानी येन की कदर की कीमत में कमी आई है, उसकी कदर में कमी आई है। उन्होंने उस जापानी कंपनी को मजबूर किया कि क्योंकि जापानी येन की कदर में कमी आई है उसका डिस्काउंट पाकिस्तान को दिया जाए, पंजाब हुकूमत को दिया है। 40 करोड़ रुपया डिस्काउंट लिया। उस जापानी कंपनी के सीईओ ने कहा कि इसकी तो दुनिया में मिसाल नहीं है कि एक्सचेंज रेट ऊपर नीचे जाए तो उसके बावजूद को बचत दी जाए। और उन्होंने कहा कि अगर जापानी येन की कदर बढ़ जाती तो क्या आप हमें इजाफी पैसे देते, जिसका जवाब था नहीं। तो 40 करोड़ रुपया उसने बचाया। ये जो आज मजाक शहबाज शरीफ के साथ किया जा रहा है, इमरान नियाजी साहब की बदतरीन इंतकामी सोच का ये एक शाखसाना है और हम कानूनी जंग भरपूर लड़ेंगे। और अगर आपका ख्याल है कि ये फुल बूटों का 45 लाख का केस बना के आप एक ऐसे शख्स को जिसने अपनी जेब से करोड़ों रुपया अदा किया, इस कौम के कई 100 अरब बचाए, 1 खरब की कुल बचत की, 3300 अरब का डेवलपमेंट पोर्टफोलियो था 10 साल में पंजाब का, आप अगर उसको इस तरीके से सियासी इंतकाम का निशाना बनाएंगे तो हम तैयार हैं। जवाब दो रावलपिंडी रिंग रोड में जो अरबों रुपए गए हैं, जवाब दो मालम जब्बा का, जवाब दो उस, ये तो हमारी मेट्रो 3 मेट्रोज 88 किलोमीटर 100 अरब में बनी है। आपने एक पेशावर मेट्रो 22 किलोमीटर की 126 अरब में बनाई है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट क्या नैब ने नहीं पढ़ी? उसमें किस किस किस्म की करप्शन हुई है, किस किस किस्म की बेज़ाब्तियां हुई हैं। उस 126 अरब का कौम को कौन जवाब देगा? आटे की आपने आटे का डाका डाला, चीनी का डाका डाला, अद्वियात का डाका डाला, कोई गिरफ्तारी नहीं है, कोई कॉल अप नोटिस नहीं है। ये इमारत में बैठे अफसर, मैं इनसे अपील करता हूं, भेजे नोटिस, करें चीनी चोरों को अंदर, करें दवाई चोरों को अंदर, आमिर कियानी को देना हवालात के अंदर, क्यों नहीं देते? 118 अरब रुपया पाकिस्तान पोस्ट में गबन हुआ है, मुराद सईद ने करवाया है और कोई पूछने वाला नहीं है। रावलपिंडी रिंग रोड के हवाले से सरवर खान साहब, मैं आज भी आपके डेफमेशन के नोटिस का इंतजार कर रहा हूं, कोई जवाब नहीं है। सांप सूंगा मैं इनको। इमरान नियाजी इस मुल्क का करप्ट तरीन हुक्मरान है और नैब नियाजी गठजोड़ उसने अपने सियासी मकासद हासिल करने के लिए बनाया है।
और इस मुल्क के तमाम माफियाज का सरगना करप्ट तरीन इमरान नियाजी है। आज बात करते हैं कि जी 1990 में इतने असासे थे। भाई आप तो एक सरकारी इंजीनियर के बेटे हैं। मियाँ शरीफ की तो 1970 की दहाई में पाकिस्तान की सबसे बड़ी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज थी। सियासत में तो ये 1985 में आए। तो आप जो कभी आए बाएं शाये करते हैं, 400 कनाल का महल है मेरे भाई, कभी कहते हैं साबका बीवी ने गिफ्ट किया, कभी कहते हैं काउंटी खेल रहा था तो फ्लैट बेचे। भाई तय कर लो, या फ्लैट बेचे या बीवी ने गिफ्ट किया है। ये होती है चोरी और ऊपर से सीना जोरी। ये एक एक केस इनका सरकारी खजाने की लूट खसूट पर मबनी है, और एक एक केस ये वो केस है जिसमें गिरफ्तारियां बनती हैं मगर नैब ने आंखें बंद की हुई हैं। नैब को 45 लाख के फुल बूटे शहबाज शरीफ के नजर आते हैं। उस शहबाज शरीफ को तो तमगा दो बुला के, जिसने नवाज शरीफ की क़यादत में खून पसीना दे के इस कौम की खिदमत की है। मगर मैं दोबारा ये बात वाज़ेह कर दूं, ये कानूनी जंग लड़ेंगे हम, और अगर एहतजाजी कॉल भी देनी पड़ी तो देंगे, मगर नैब नियाजी गठ जोड़ के नतीजे में ये जुल्म और बर्बरियत जारी नहीं रह सकती। बहुत इकबाल साहब के भाई का नाम इसमें आ रहा है, क्या ठेका उन्हीं को मिला था? तमाम कानूनी पहलू उन्होंने पूरे किए थे, इस पर थोड़ी सी देखिए। पहली बात तो ये है कि शहबाज शरीफ साहब को जो कॉल ऑफ नोटिस दिया गया उसमें लिखा गया है कि जी 9 जुलाई को आपको पहला कॉल ऑफ नोटिस दिया गया था। जब वो सवालनामा ही नहीं आया, कॉल ऑफ नोटिस ही नहीं आया, और आप यकदम बुला लें तो ये कोई तुक नहीं बनती। हमने अपना जवाब जमा कराया है, हमें रिकॉर्ड मुहैया किया जाएगा, कागजात दिए जाएंगे, उस पर मबनी हम अपना अगला जवाब जमा कराएंगे। ये तो बात बिल्कुल सिंपल है। जहाँ तक एहसन इकबाल साहब के भाई का ताल्लुक है,